we'll continue. So we have discussed in the last video the about the basic form of wave. Okay, that is description of wave motion. उसी को तुम बोलो kinematics of wave motion. If wave is traveling, what are the important points that we have to keep in mind? Okay, so that was the kinematics of wave motion that we have learned under description of wave. Okay, now after this the next term that we have to learn, the equation of traveling wave. So give the heading equation of traveling wave. So equation of traveling wave, it's an equation, it's a mathematical form. So first we get into that, let's learn something about this. That is, we have, let's say we have an equation y is equal to x. So y is equal to x is this equation. If you want to draw equation y is equal to x minus 2, what you have to do, again one thing, make 2 points. Second, by the help of this equation I have to draw. And those who have done maths, जिनका maths नहीं भी है वो भी सीख लो कि when if I am subtracting in x, then this whole will shift towards positive x. ये यहाँ पे था तो यहाँ से x is equal to 2 ये है तो this whole line will shift towards this 2. This graph will become this. This is y is equal to x minus 2. So when I am subtracting in x, then whole will shift towards positive x. Okay. If I do, let's say y is equal to, if I draw y is equal to x plus 2. So this graph, from this graph I am adding in x. So whole graph will shift towards negative x by 2 unit. जितना वाला यूनिट मतलब ऐड करेंगे उतना ही नेगेटिव x की तरफ फोर्स शिफ्ट हो जाएगा. इट विल बी लाइक दिस. सेम फॉर y. कोई इसको ऐसे लिख सकता है y plus 2 is equal to x. तो yes, so since I am adding in y, so it will shift towards negative y. It will shift towards negative y by 2 unit. This is minus 2. The same equation here, this equation can be written y is equal to minus 2 is equal to x. If I am subtracting in x y here, so it will be what? It will be added, it will shift towards positive y. This is just a method I am telling you, but basic idea जो जिन लोगों ने ग्राफ किया होगा उनको समझा होगा ये. चाहे जिनको नहीं है तो भी ये कर लो कि if लिख सकते हो कि if we add in x, then whole graph shift towards negative x. If we add in y, or if we subtract in x, then whole graph will shift towards positive x. Now let's say if we have y is equal to sin x, इसका ग्राफ पता है अपने को, that is this is y is equal to sin x. Okay, if I have to draw y is equal to sin x minus 2, again this is the part of angle. X minus 2 I am subtracting a sine is a one function. Sine is a one function. This I can write y is equal to fx. This I can write y is equal to fx minus 2. Remember, just f is a one function that I have taken here. So since I am subtracting in x, so this by this is 0, this is pi. So whole graph will shift towards positive by 2 unit. तो जो 0 है वो 2 पे आ जाएगा, जो पाई है वो पाई plus 2 पे चला जाएगा, and graph will become like this. शिफ्ट मतलब पैटर्न वही रहेगा, शिफ्ट ये शिफ्ट हो जाएगा. किसी ने ऐसे किया कि y is equal to
साइन एक्स माइनस टू, ये अलग ये अलग, तो ये अलग है बिकॉज हम लोग x में सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे तुम लेके आओगे तो y प्लस टू इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे हम लोग y में ऐड कर रहे हैं, तो y में ऐड कर रहे हैं तो दिस होल इज शिफ्ट टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस। दोनों में डिफरेंस देखना, दोनों में डिफरेंस देखना। दिस इज y ऑफ y ऑफ f y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस टू। दिस इज नॉट y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस टू। Here we are subtracting in y, तो whole graph will shift towards negative y by 2 unit। मतलब ये ऐसा shift हो जाएगा ये, ठीक है। This is -1 like this। तो whole graph will shift towards negative because I am subtracting in y। तो ये basic idea तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, for graph drawing के लिए। एंड उसके बाद ये आसान हो जाएगा। जैसे जैसे कुछ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि जो बायो वाले हैं उनको थोड़ा सा लेट्स से y इज इक्वल टू EX का ग्राफ कैसा है, EX का ग्राफ ऐसा है। आई टू ड्रॉ y इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे y इज इक्वल टू fx, इसको हम ऐसे f इज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू EX माइनस टू, तो इसको ऐसे लिखते हैं y ऑफ x माइनस टू, f is exponential function। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, तो just see by looking at this graph, x में क्या subtract, तो it will shift towards positive x, तो x equal to positive plus 2। तो ये तो जो यहाँ पे है वो शिफ्ट होके अभी मैं इसी में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, मैं इसी में ड्रॉ करता हूँ। तो जो यहाँ पे ये 0 है तो ये 2 पे आ जाएगा एंड जस्ट ग्राफ इसके पैरेलल ही रहेगा। it will be parallel to this। ये जस्ट शिफ्ट हो जाएगा और ये ऐसा मूव होगा, एवरीथिंग विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव x0। तो ये सॉरी ये ऐसा नहीं, एवरीथिंग विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स, मतलब ये जो x0 y1 x2 पे हो गया y1, ये 1 0,1 है, ये 2,1 हो जाएगा एंड दिस y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये x0 रखा तो y इज, ये फिर ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। दिस इज y ऑफ fx, दिस इज y ऑफ y is equal to f of x minus 2। Let's say second y is equal to ln x। ln x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो if I to draw y is equal to ln x minus 2, तो जस्ट इसको शिफ्ट करना है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा ग्राफ, जस्ट इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस, ठीक है। तो अगर सब्ट्रैक्ट किया वैसे ही ऐड किया तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर x में ऐड किया तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स नेगेटिव x, अगर x में सब्ट्रैक्ट किया इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव x, ओके। नाउ लेट्स से y is equal to x square, वेरी कॉमन, सबको पता है, इट्स अ पैराबोला लुकिंग अपवर्ड, आपको याद है। Now y is equal to x minus 2 whole square और y is equal to x plus 2 whole square। तो ये क्या नहीं, it's a parabola, it's a algebraic equation। तो this is y is equal to fx। अभी ये हो जाएगा y is equal to x minus 2। तो x में किया subtract, तो everything will shift towards this, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ ये ऐसा शिफ्ट ये हो जाएगा। This is y is equal to f of x minus 2। f of x minus 2, इसके लिए क्या, it will shift towards negative x, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, shift towards negative x। this is y of f x plus 2। तो ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, it will help us in visualizing the equation of traveling wave, ठीक है। now let's get back to equation of traveling wave। traveling wave equation again, wave is traveling meaning what, कि मैंने एक एंड पे वेव जनरेट किया, वो दूसरे एंड तक पहुंच गया,
और हम लोग कंटिन्यूसली वेव जनरेट, अगेन वेव हम लोग एक बार जनरेट नहीं करते, इट इज गोइंग टू मूव कंटिन्यूसली। तो अगर तुम एस सी वर्मा फिगर 303 था ना शायद, इफ यू ओपन 304, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वहाँ पे 304 में जो फर्स्ट फिगर है 15.2, इफ यू जस्ट सी, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने, अगर मुझे स्ट्रिंग, अगेन वी आर डूइंग फॉर वन डायमेंशनल वेव, तो एंड दैट इज देयर इन द वेव ऑन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को पहले टाइट करना होगा and then you are giving the pulse, okay, then you are creating disturbance at the one end, second end is fixed। तो ट्रैवलिंग वेव हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ और विद इन क्लास मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है, क्यों पहुँच रही है, कि जो मैंने वेव्स जनरेट किए, साउंड इज़ अ वेव, तो जो मैंने वेव्स जनरेट किए वो वेव यहाँ से ट्रैवल करके इट इज़ रीचिंग टू द डिफरेंट प्लेसेस, एंड दैट्स वाई the person there is going to listen it, it's a traveling wave, okay। So what is the equation of traveling wave? First of all means जो मतलब जैसा मैंने, जैसा अगेन ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स ग्राफ, जैसे भी क्या y is equal to sin x, y is equal to ln x, so they are the equation, and equation से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जैसा मैंने वेव का इक्वेशन मैंने जनरेट किया, जैसा मैंने ग्राफ, जैसा मैंने शेप वेव का जनरेट किया, वही शेप कुछ टाइम के बाद इट विल रीच टू योर प्लेस, टू योर ईयर, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू लिसन इट। जिस टाइप का ग्राफ, जिस टाइप का वेव मैंने जनरेट किया, तुमने स्ट्रिंग में जनरेट, वही स्ट्रिंग में ट्रैवल करता करता आगे तक जाएगा। अभी कौन सा शेप होगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन द सोर्स, द डिस्टर्बिंग सोर्स। तो डिस्टर्बिंग सोर्स जिस टाइप का होगा उसी टाइप का शेप वेव जनरेट होगा, ग्राफ जनरेट होगा। वही ग्राफ अगर ट्रैवलिंग है तो इट शुड ट्रैवल विद द टाइम, इट शुड गो फ्रॉम वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस। जैसे अगर ये करो, जैसे अभी बोलते हैं कि जब गांधी जी ने जब भाषण दिया होगा 1942, 1946, 1945, या भगत सिंह ने 1930 में, उनकी आवाज़, उन्होंने जो कुछ बोला होगा, जो हम लोग बोल रहे हैं, चाहे जो मैं अभी बोल रहा हूँ या फिर जो मैंने एक साल पहले तुम लोगों से बोला था विद इन क्लास, तो बोलने के बाद जो वेव जनरेट हुए, दैट वेव इज ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली, दैट वेव इज ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली, एंड तो जो शेप मैंने जनरेट किया वही शेप आगे ट्रैवल करते 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 वो आगे तक निकल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव। वो एक जगह पे रुकेगा नहीं, वो वेव ट्रैवल करता हुआ आगे वो निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव। कि मैंने एक जगह पे वेव जनरेट किया और वो वेव, that wave started traveling and it reached to the second place after some time, third place after some different time, fourth place after some another different time. So we have to develop the equation of those traveling wave. And अपने लिए क्या है, अपनी सबसे अच्छी बात क्या है कि we are doing in a 1D के लिए हम लोग कर रहे हैं one dimensional wave, and we are doing for a, and one dimensional wave is very common on the string. तो string पे wave generate करना है and we have to develop the traveling wave. तो string पे अगर wave generate करना है, so what I have taken a string को मैंने tight किया, एक वहाँ पे figure दिया हुआ है, और टाइट कर, अगेन टेंशन नहीं होगा, टाइट नहीं किया तो टेंशन नहीं हुआ, टेंशन नहीं हुआ तो वेव जनरेट नहीं हुआ स्ट्रिंग पे, क्यों नहीं हुआ देखते हैं हम लोग। तो तुमने यहाँ पे एक पल्स तुमने यहाँ पे जनरेट किया, तुमने पल्स एक जनरेट किया बाई शार्प हिटिंग, वेरी कॉमन, जो हम लोग गिटार में तो वहाँ पे देखा तुरंत हिट करते हैं हम लोग, शार्प हिट करते हैं, तो वैसे मैंने पल्स जनरेट किया। ये ट्रैवलिंग वेव है, तो आफ्टर सम टाइम इट विल ट्रैवल टू द नेक्स्ट प्लेस। ये फिर आफ्टर टाइम टी इट विल कम हियर, आफ्टर टाइम टी इट विल कम हियर, लाइक दिस। देखो वो फिगर दिया हुआ है इस चीज में, इट्स अ ट्रैवलिंग वेव। तो मैंने जिस शेप का ये ड्रॉ किया वही शेप आगे तक मूव होगा, वही शेप, अगेन एनर्जी लॉस नहीं है, वी आर अज्यूमिंग नो एनर्जी लॉस, तो वही शेप, वही एनर्जी, वही मोमेंटम आगे वो वेव, वो एनर्जी, वो मोमेंटम एक पार्टिकल से दूसरा, दूसरा से तीसरा ये मूव होता जाएगा। एंड टेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जनरेट वन डायमेंशनल वेव इन स्ट्रिंग। व्हाई?
बिकॉज ये जो शेप है ये वापस इस शेप में आना चाहिए, ये शेप वापस इस शेप में आना चाहिए। अदरवाइज अगर पार्टिकल उसी शेप में रहा तो वेव तो रिस्टोरिंग नेचर नहीं होगा, तो फिर वेव आगे ट्रेवल होगा ही नहीं। क्योंकि ये पार्टिकल जो यहाँ का पार्टिकल है वो अपने मीन प्लेस से ऊपर गया, इसलिए वो अपने मीन प्लेस पे आना चाह रहा है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग नेचर गेटिंग डेवलप्ड। यहाँ पे देखो, अगर ये शेप ऐसा है, तुमने किया जनरेट, स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग में टेंशन है तो टेंशन का फोर्स ऐसे आएगा, एंड इसका एक कंपोनेंट ऐसे ऐसे ये कैंसिल होगा और सेकेंड कंपोनेंट ऐसे होगा, एंड ड्यू टू दिस कंपोनेंट the particle will try to come back to the original position, to its mean position, and that's why tension is very important for a wave to get generated in a string. लूज है, लूज वायर है, लूज स्ट्रिंग है, उसमें वेव जनरेट नहीं होगा। We are looking for one dimensional waves, and that's why I've taken a string. It can be any type of wave, and we have discussed, I have said this, कि if you learn about one type of wave, that is same kind of nature, same kind of replica is for another type of wave. So that's why studying a one kind of wave gives you freedom about the another kind of wave. तो अभी ये मैंने शेप कैसा किया जनरेट, ये शेप किसी भी तरह का हो सकता है, दिस शेप, तो इसलिए मैंने इसको एक जनरल से दे दिया y is equal to fx, एक नया नाम दिया इसको y is equal to fx। अगेन y is the displacement along, ये अपना y एक्सिस हो गया, ये अपना x एक्सिस हो गया, तो y मतलब स्ट्रिंग है, तो पार्टिकल, अगेन पार्टिकल मूविंग अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, एंड वेव इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ट्रांसवर्स वेव। तो ये किसी एक शेप का वेव है, y इज इक्वल टू fx, किसी एक शेप का वेव है। यस f, ये फंक्शन साइन हो सकता है तो इट विल बी अ साइनसॉइडल वेव, कॉस हो ln हो सकता है तो इट्स अ लॉगरिथमिक वेव, एक्सपोनेंशियल वेव हो सकता है, अलजेब्राइक वेव, कुछ कोई भी। So that's a taken as general word, general term f I have taken. It can be any type. Let's say at t is equal to 0 I have generated this. This is at t is equal to 0. This is at t is equal to 0. After time t, it has reached here. After time t, this is, let's say this is t is equal to 0. This is t equal to t1 पे वो यहाँ पे आ गया, t2 पे वो और यहाँ पे आ गया। तो ये डिस्टेंस, लेट्स से यहाँ से ये, दिस इज x1 डिस्टेंस, दिस इज x2 डिस्टेंस, वो आगे गया। तो मुझे यहाँ का शेप बताना है, यहाँ पे कैसा शेप होगा। तो अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कोई लॉस नहीं है, तो वही शेप होगा, एंड दैट इज द आइडियल केस दैट वी आर टेकिंग, वी आर अज्यूमिंग दिस, कि मैंने जिस शेप का वेव यहाँ पे जनरेट किया वही वेव आफ्टर टाइम टी यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे यहाँ का वेव बताना है कि वहाँ का शेप क्या होगा। अगर मुझे यहाँ का शेप पता है तो यहाँ का शेप बताने के लिए क्या करना होगा, तो अगर मैंने कोऑर्डिनेट x1 वहाँ पे डाल दिया, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस विल बी f x माइनस x1, सो x माइनस x1 मीन्स व्हाट, कि यही शेप, दिस शेप हैज ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स x1 डिस्टेंस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। मुझे यहाँ का शेप बताना है कि राइट f x माइनस x2, दिस इज y। देखो तो मुझे यहाँ का शेप पता है। अभी जो हमने सीखा हम लोगों ने कि x में कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होता है, इट द होल ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो x में ऐड किया तो होल ग्राफ, होल शेप शिफ्ट टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन। प्लीज दिस इज अ मैथमेटिकल, सिंपल मैथमेटिक्स, नॉट डिफिकल्ट। x1 को हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन सिंस वी हैव टू इंक्लूड टाइम आल्सो, बिकॉज इट इज अ स्पेशल केस, बट आई वांट टू इंक्लूड टाइम आल्सो, कि डिफरेंट टाइम पे, कि if I put time, if I put x, we should know everything about the wave। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया x1, तो x1 मतलब x1 को हम लोग कैसे रखेंगे, तो let's say we know that velocity of wave is constant, so can we say this कि x1 is nothing but v into t1, x2 is nothing but v into t2, this t is taken 0। So if I put it here, so let's say this is first, this is second, तो first मैंने पुट किया कि y is equal to f of x minus vt1, और for second के लिए y is equal to f of x minus vt2। So this becomes my equation of traveling wave, because different time पे वही shape आगे 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 replicate हो रहा है, वही shape आगे आगे travel हो रहा है। So this becomes equation of traveling wave। तो अगर मुझे general wave में convert करना है तो क्या होगा, general equation of traveling wave,
तो जनरल इक्वेशन में क्या हो जाएगा, तो वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू जनरल टर्म. So in general I can write y is equal to, so can I say f of x minus vt is a equation of travelling wave. At different time, at different x, you can get everything, all information about the particle of the system. Here particle of the string. So this becomes the equation of travelling wave. यहाँ पे अगर मैंने ये किया कि अगर मैंने रखा कि एट t इज कांस्टेंट रखा, मैंने t इज कांस्टेंट दैट इज 0 और 5 सेकेंड, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x. अगर if y is 0, so at t is equal to 0, y is equal to fx will tell you information about the displacement of all the particle as a function of distance, and that was our first graph when we were discussing about the description of the wave motion. और मैंने इसमें टाइम को एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स कर दी कि इस टाइम पे सिस्टम के सारे पार्टिकल कैसा दिख रहा है. सो दैट वी कम टू नो अबाउट दिस. यहाँ पे तुमने ये रख दिया, या फिर y इज इक्वल टू, और तुमने t इज इक्वल टू तुमने रखा 0, तो ये हो गया. अगर तुमने रखा t इज इक्वल टू रखा 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड पर x माइनस 5 हो जाएगा, तो 5v हो जाएगा. तो 5 सेकेंड पे सारे पार्टिकल कैसे दिख रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, कि मैंने इस एंड पे मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया और ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल हो रहा है. तो ट्रैवलिंग वेव. ट्रैवलिंग वेव क्यों है, बिकॉज x माइनस वी टी फॉर्म में, x माइनस वी टी फॉर्म में. तो चेंज द टाइम, यू विल गेट द पोजिशन, you will get the shape of the wave generated at t is equal to 0 at the one end throughout the distance. So अगर तुमने यहाँ पे टाइम कांस्टेंट रखा, तो टाइम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखना if time is constant meaning what, you will get about the, तो इसलिए मैं 5 नहीं ले रहा, I will take t0 only, that is better. Okay, so at 5 लिया तो यहाँ पे just 5 minus 5v आ जाएगा और कुछ नहीं. So this tells you, ये टाइम 0 कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, एनी टाइम. तो यहाँ पे लिखना this tells you position of particle as a function of distance or displacement of particle as a function of distance. So as you change the time, you will get the position or the displacement of particle as a function of distance. यहाँ पे अगर मैंने x कांस्टेंट रखा, अगर x को कांस्टेंट रखा, let's say x equal to 0, क्या हो जाएगा, f minus vt. मतलब किसी एक पोजीशन पे डिफरेंट टाइम पे पार्टिकल कैसा दिख रहा है, पार्टिकल का शेप क्या है, पार्टिकल कैसे डिस्प्लेस हो रहा है, दैट विल कम टू नो फ्रॉम हियर. And if we combine these two, we will get f as a x minus vt, कि for a different x for a different time how the particle is looking like, how the shape of the wave is looking like, that will come to know. And wave में we are mainly interested in the displacement of particle and the shape, basically कैसा, किस shape का वो अपने को दिख रहा है, किस shape का wave अपने को दिख रहा है. So now, so that's why this is the, any equation in this form x minus, again this is a 1D, so that's why x minus vt. So any equation in this form is known as equation of traveling wave. Traveling wave meaning what? At different time the position of particle is known, and at the same time for a same distance the position of particle at different time is known. तो जो मैंने शेप यहाँ पे किया जनरेट, वही शेप आगे ट्रैवल हो रहा है. तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, x माइनस x1 चाहिए अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव में है तो x प्लस x1 हो जाएगा.
और उसी को x1 को मैंने वेलोसिटी ऑफ वेव और टाइम के फॉर्म में रिप्लेस किया. So this is known as equation of traveling wave. Let's say if again shape किसी फॉर्म में हो सकता है. I'll just write and that is more equal. Let's say y is equal to f of x minus vt. किसने लिखा? तो यहाँ पे लिखना it is equation of traveling wave. It is equation of traveling wave. It is the equation of traveling wave in positive x direction. Positive x direction. Because माइनस है. यहाँ पे हम लोग v को हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं. देखो यहाँ पे एक इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकता है. That is y is equal to g of t minus x by v. ऐसे भी कोई लिख सकता है. माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया. अगेन यहाँ पे क्या किया मैंने, v को लिया कॉमन, माइनस को लिया, तो f has converted into some different function g. So this is also equation of traveling wave in positive x direction because इसको just change किया मैंने. It will become some another function. Similarly, y is equal to fx plus vt. This is equation of traveling wave in negative x direction because यहाँ पे प्लस किया मैंने. उसी तरह y is equal to g of t plus x by v. This is equation of traveling wave in negative x direction. Same. If y is equal to f of x square minus v square t square. Is this equation of traveling wave? This is not an equation of traveling wave. This is not traveling wave. Because अपने को क्या चाहिए, x minus vt फॉर्म में चाहिए. यहाँ पे x स्क्वायर मैंने यहाँ पे फंक्शन ही चेंज कर दिया, मतलब जो फंक्शन शुरू में था उसी को मैंने चेंज कर दिया. y is equal to f of x minus vt whole square. इन दोनों में डिफरेंस देखना. तो यस, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. वाई पॉजिटिव बिकॉज माइनस है, और वाई ट्रैवलिंग वेव बिकॉज x माइनस vt फॉर्म में. x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस vt स्क्वायर इज नॉट अ इक्वेशन दैट वी हैव डेवलप्ड. f इज एनी फंक्शन. अगर लेट्स से y is equal to fx is a equation of wave at t is equal to 0. तो ट्रैवलिंग वेव है तो y will be f of x minus vt पूरा रिप्लेस होगा, not x square minus vt square. Let's say y is equal to e raised to x minus vt. Is this traveling wave? So yes, this is equal to traveling wave in positive x direction because again here f is exponential and x minus vt form में, so that is correct. y is equal to ln t minus x by v. So yes, this is also equal to traveling wave in positive x direction. But वही किसी ने लिख दिया y is equal to ln t square minus x square by v square. So this is not traveling wave, not traveling wave. बिकॉज ये अपने को उस फॉर्म में नहीं है. उस फॉर्म में क्यों चाहिए कि मैंने जो इनिशियली शेप जनरेट किया वही शेप आगे ट्रेवल हो, तभी तो वो इक्वेशन आएगा. ये तो कोई और इक्वेशन आ गया. इनिशियली शेप किसी एक पर्टिकुलर शेप का होगा. लेट्स से इनिशियल शेप इसमें क्या होगा, इसमें इनिशियली शेप होगा ln t, करेक्ट. आफ्टर सम टाइम दिस हैज टू बी ln t माइनस अगेन t स्क्वायर होगा इनिशियल शेप बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है. आफ्टर टाइम t इट हैज टू बी x by v raised to whole square. So this will become a traveling wave, but t square minus x of v square is not a traveling wave. ठीक है, इसी को मैंने लिखा मैंने लेट्स से, तो इसी से मैंने लिखा यहीं से y से उसी के नीचे लिखना ln t minus t plus x by v whole square. Yes, this will become a traveling wave in negative x direction. This will become equation of traveling wave in negative x direction.
तो तुमको किसी भी वेव को ट्रैवलिंग वेव में कन्वर्ट करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू x माइनस वी टी और x प्लस वी टी और t माइनस x बाई वी और t प्लस x बाई वी। यहाँ पे देखो दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटीज का होता है। यहाँ पे t है तो दिस आल्सो हैज गॉट द डायमेंशन ऑफ t। यहाँ पे ये डिस्टेंस है तो दिस आल्सो हैज गॉट द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। दोनों अलग अलग होंगे ऐसा नहीं हो सकता। सो दोनों में डिफरेंस आई थिंक समझ रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे तुमको SCV उसी में देखना, SCV 305 पेज पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 15.1 दिया हुआ है। A wave is propagating along a long stretched string. Its length is taken as a positive x-axis and the wave equation 305 page पे question number 15.1. The wave equation is given by this. देखो वहाँ पे wave का equation दिया हुआ है, y is equal to y naught e raised to minus t by t minus x by lambda whole square, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। देखो अपना फर्स्ट ये करो मॉडिफाई, y इज इक्वल टू वाई नॉट ई रेस टू माइनस टी को मैंने कॉमन ले लिया, x लैम्डा को मैंने ले लिया कॉमन। तो फिर यहाँ से देखो यहाँ अगेन दिस इज ऑल्सो इक्वेशन उसी फॉर्म में हो गया ये, बिकॉज यहाँ पे तुमने t को लिया कॉमन तो 1 बाई टी स्क्वायर इज कॉमन, तो t माइनस x t बाई लैम्डा स्क्वायर। बस देखो उस फॉर्म में तो y इज इक्वल टू f ऑफ x f ऑफ t माइनस x बाई v। दिस इज माई उसी फॉर्म में ये आ गया, कन्वर्ट हो गया। t इज अ कांस्टेंट, t इज अ टाइम पीरियड होगा, तो t इज अ कांस्टेंट। तो देखो ये f इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके साथ ये पूरा आ गया x माइनस टी वी। तो यहाँ पे दिस विल बी 1 by v। इफ यू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म से करो कंपेयर, तो यहाँ पे दिस विल बी v। और ऐसे भी तुम चेक करो कि अगेन जैसे मैंने किया कि y इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस एक्स बाई वी। यहाँ से मैंने f ऑफ दोनों साइड मैंने t से मल्टीप्लाई कर दिया, t बाई टी माइनस एक्स बाई वी टी, कुछ भी चेंज हुआ नहीं हुआ। y इज इक्वल टू एफ ऑफ, तो ये एक अनदर फंक्शन लिख दो g, तो t बाई टी इसी फॉर्म में है ये, t बाई टी माइनस एक्स बाई वी टी विच इज रिटन एज लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये ट्रैवलिंग है तो ये भी ट्रैवलिंग है। ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हो गया, ये कुछ ऐसा टी स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं लेता मैं, ये होल को मैंने f लिया। तो देखो वहां पे क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव, तो कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड के तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी, लैम्डा दिया हुआ है टी दिया हुआ आ जाएगा। फाइंड द फंक्शन ft गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू वाई नॉट ई रेस टू टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा। फाइंड द फंक्शन gx गिविंग द शेप ऑफ स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 0। तो अगेन देखो फर्स्ट में था fx, सेकंड में gx, क्यों, क्योंकि फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो c में t इज इक्वल टू 0 रखा, तो y इज इक्वल टू वाई नॉट ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर में, तो दोनों अलग अलग, इसलिए इसको fx बोला उन्होंने, इसलिए इसको gx बोला उन्होंने, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। देन प्लॉट द शेप ऑफ स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 5, प्लॉट द gx स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। d में प्लॉट करना है तो ग्राफ कैसा दिख रहा है, t इज इक्वल टू 0, तो जस्ट देखो ये है
अभी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो देखो यहाँ पे अभी जस्ट अप्रॉक्स ड्रॉ करना है। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अगर तुमको कुछ जो मैथ्स उनको पता होगी, y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा आता है, ये ऐसा आता है। y इज इक्वल टू ई रेज टू प्लस एक्स का ग्राफ कैसा आता है, वो ऐसा आता है। अभी अपने को y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर ये ड्रॉ करना है माइनस। तो देखो यहाँ पे x भी पॉजिटिव हो सकता है, x नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो x पॉजिटिव x नेगेटिव एंड दोनों पॉजिटिव के लिए भी ये व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी इट विल बी जीरो, फॉर नेगेटिव आल्सो इट इज x टेंड्स टू जीरो इज इंफिनिटी। तो यहाँ पे तुमको जस्ट देखना है कि पुट हियर इज x इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया मैक्सिमम। उसके बाद पुट x जीरो तो y इज मैक्सिमम। उसके बाद जैसे जैसे x इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होता जाएगा और ये कुछ जीरो, फिर ये होगा तो इस साइड भी डिक्रीज होगा, बिकॉज माइनस एक्स भी एक्स स्क्वायर विल बी सेम, माइनस एक्स भी लिया तो इट्स एक्स स्क्वायर विल बी सेम, तो दोनों साइड ये सेम ग्राफ आ जाएगा ये। तो दिस इज एट t इज इक्वल टू जीरो पे ग्राफ है ये। वही बोल रहा है कि ड्रॉ द प्लॉट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 5। तो 5 पे क्या हो जाएगा, सेम शेप 5 सेकेंड पे आगे ट्रेवल हो जाएगा, ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये सेम शेप तुमको ऐसे, बिकॉज यही शेप आगे ये चलता जाएगा ये शेप, ठीक है। तो देखना आसान है, थोड़ा सा सबको कंफ्यूजन लगेगा कि अरे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर कैसे नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर इसलिए नहीं, जैसे कुछ लोग वही तो सेम ही तो लग रहा है कि जैसे भी f is equal to x minus vt, this is a traveling wave, but if x square minus v square t square ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं है तुमको समझ रही है, क्योंकि अगर fx put here t is equal to 0 तो x स्क्वायर, तो अगर ये ट्रैवलिंग वेव है तो सेम शेप रिपीट होना चाहिए। तो x माइनस वी टी रखा तो यहाँ पे x माइनस वी टी का होल स्क्वायर आएगा, ये अलग से स्क्वायर नहीं आएगा, सेम शेप रिपीट होना चाहिए। डाउट्स में पूछना, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, अ वेव पल्स इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग, अ वेव पल्स इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। Displacement y of the particle at x is equal to 0. Displacement y of the particle at x is equal to 0 at any time t, small t, is given by any time is given by y is equal to 2 by t square plus 1. Find first expression of the function y is equal to x comma t, that is displacement of particle as a function as a position x and time t, that is displacement of particle at position x and time t. And second, shape of the pulse at t is equal to 0 and t is equal to 1 second. फिर से यहाँ पे आता हूँ, ये ट्रैवलिंग वेव क्यों नहीं है, फिर इस पर आएंगे इस पे। तो यहाँ पे देखो पुट हियर t is equal to 0, तो शेप कैसा आता है, f is equal to x square। तो at any time t, if it is a traveling wave, so at any time t this f has to be x minus vt whole square, because हम लोग x में सब मतलब हम लोग फंक्शन चेंज, x को हम लोग चेंज कर रहे हैं, now x has become this, तब तो हम लोग को आगे कराएगा, हम लोग x में किया सब्ट्रैक्ट, कुछ किया सब्ट्रैक्ट, तो दिस शेप इज रेप्लिकेटेड एट अ पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो यहाँ पे लेकिन ये v स्क्वायर टी, इसलिए यो यहाँ पे v स्क्वायर टी उसका अलग से, इसलिए वो ट्रैवलिंग वेव नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड क्या वेव पल्स ट्रैवलिंग
स्ट्रिंग। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, v इज इक्वल टू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, वेव पल्स से ट्रैवलिंग स्ट्रिंग 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अभी इसको मुझे, दिस इज गिवन एट x इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन एट x इक्वल टू 0। मुझे जनरल टाइम पे कन्वर्ट करना है तो x क्या हो जाएगा, x विल बी v 2 into t हो जाएगा at any time after time t, x will be this because wave is traveling. So यहाँ पे f of y is given, that is मतलब sorry y is given, that is f of t, that is given 2 by t square plus 1। अपने को ट्रैवलिंग वे में करना है तो f of t minus x by v, है ना, टाइम से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो दिस बिकम्स 2 बाई, अगेन जहाँ पे t है वहाँ पे ये करेंगे रिप्लेस, तो t यहाँ पे तो t माइनस x बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 1। देखो ये, एंड यही मैथ्स में करते हैं हम लोग, ये ऐसा ही हम लोग मैथ्स में फंक्शन यूज करते हैं हम लोग। सो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन अ पॉजिटिव x डायरेक्शन। अभी तुमको इसका शेप ड्रॉ करना है, शेप के लिए तुम खुद से ट्राई करो, ये तो मैं डाउट सेशन में बताऊंगा। ओके, तो ट्रैवलिंग वेव करना है तो अपने को t पॉजिटिव x में तो t माइनस एक्स बाई वी, या फिर अपने को करना हो तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वी टी। लेकिन यहाँ पे t दिया हुआ था इसलिए मैंने t माइनस एक्स बाई वी किया। अगर यहाँ पे x दिया हुआ था तो हम लोग ये करते फिर पॉजिटिव x में, और नेगेटिव x इसके जस्ट उल्टा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wave pulse moving along x-axis is represented by the wave function. Wave function y as a function of xt is given 2 by x minus 3t whole square plus 1, where x and y are measured in centimeter and t is in second. So in which direction this wave is traveling? Second, find speed of the wave. Third, plot waveform at t0 t2 सेकेंड। तो उसके हम लोग बाद में आएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, y is equal to x minus vt है ये, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x minus vt फॉर्म का है ये फंक्शन। देखो ये x माइनस वी टी फॉर्म में है या नहीं, किस तरह तुम चेक करोगे, तो पुट हियर t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे जो शेप है वो क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे शेप क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज माई एफ एक्स। अभी ट्रैवलिंग वेव है तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वी टी, सो दिस बिकम्स 2 बाई, जहाँ पे x है वहाँ पे करेंगे रिप्लेस, पूरे में नहीं, पूरे में x है ही नहीं, x सिर्फ यहीं पे, x माइनस वी टी स्क्वायर प्लस 1। देखो ये, तो देन इट अ ट्रैवलिंग वेव। माइनस किया तो इट इज पॉजिटिव x डायरेक्शन, एंड कंपेयर द स्टैंडर्ड v, सो दिस वेलोसिटी बिकम्स 3 मीटर पर सेकेंड हियर। कंपेयर द स्टैंडर्ड इक्वेशन, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, so with this idea, some of the questions, let me see, you can attempt. एक्सरसाइज में 323 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सोचना, देखना, मैथ्स है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं तो डाउट सेशन में पूछो फिर। थैंक यू।